Dear students, good morning to all of you. Now, welcome in my new lecture series of traveling wave and a transmission line. So, friends, before going to the next topic, first we would like to discuss the previous topics, which is we have already discussed in the last lecture. So, review of the previous lecture, we have already covered the reflection and refraction at T junction. Means if a line is connected with a two different line and make a junction here, then how the wave will be transmitted in both of the lines, and similarly the line wave reflected from the junction. So there are uh, waves which we have already discussed in the previous lecture. The second, reactance termination. Suppose if the line is terminated through a inductor, or it will be terminated through a capacitor. So in both the situation, how we can analyze the traveling wave phenomena in form of transmission and reflection. So now in today's lecture, we are only discussing the one topic, that is a Wavelength lattice diagram. The wavelength lattice diagram is just not only the new thing; it is again a analytical method which is known as a graphical analytical method of traveling wave. Here, by the graphics, we can analyze the reflection and refraction behavior of a traveling wave, or you can say that the effect of uh, impedance change on a traveling wave, either voltage wave or the current wave. So the Billways lattice diagram, this is a graphical representation of a time-space relation. It is basically known as time-space relation, which shows the positive and the direction of motion at any instant of incident, reflected or transmission current or voltage surges. इधर बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के मूवमेंट मोशन को ही एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वोल्टेज एंड करंट. द लैटिस डायग्राम means in this we have to draw a lattice diagram. Lattice diagram में क्या करते हैं, तो horizontal axis is represents the distance traveled along the system. यानी अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सपोज x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. एंड द वर्टिकल एक्सिस मींस इसको हम दो एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिनोमेना एंड वर्टिकल एक्सिस फिनोमेना. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रेवल्ड, एंड वर्टिकल एक्सिस दैट विल बी रिप्रेजेंट द टाइम टेकिंग टू द ट्रेवल, यानी कितना टाइम लग रहा है हमारा वेव को ट्रेवल करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पे. नाउ एट ईच इंस्टेंट चेंज ऑफ इम्पीडेंस, जब यहाँ से वेव ट्रेवल करके दूसरे एंड तक जाएगी, सो इस पूरे ट्रेवल के दौरान क्या होगा, इम्पीडेंस का चेंज होगा. सो एट ईच इंस्टेंट ऑफ चेंज इन द इम्पीडेंस, द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव current or voltage can be calculated by multiplying incident wave value यानी with reflected and transmitted coefficient. इस पूरे फिनोमिना में हम क्या करते हैं कि जो वेव हमारा ट्रेवल करता है उसमें हम इसको हम कैलकुलेट करने के लिए, मतलब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और करंट के, हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाइंग इंसिडेंट वैल्यू, जो इंसिडेंट वेव वैल्यू, चाहे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो चाहे करंट का मैग्नीट्यूड हो, उस वेव वैल्यू को हम उसके रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे. So there are two possibilities, either at the receiving end will be open circuited, or receiving end will be short circuited or terminated through a resistance, you can say. So consider a line connected to a source of constant voltage V, and one end and open circuited at the another end. Second end को हमने open कर रखा है. Let
alpha s and alpha l be the reflection coefficient at the sending end and load end reflect respectively. हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो अल्फा एस है, अल्फा एस हमारा क्या है, दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द सेंडिंग एंड, और जो अल्फा एल है वो एट द लोड एंड हम कंसीडर करके चल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड टी द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, यानी लाइन को हमारे ट्रेवल करने में मींस वेव को हमारे ट्रेवल करने में इस एंड से इस एंड टी टाइम लग रहा है. So when t is equal to 0, at t is equal to 0, जैसे ही हमारा स्विच ऑफ हुआ, t is equal to 0 सेकेंड, वोल्टेज वेव इज कनेक्टेड, मान लेते हैं वोल्टेज हमने अप्लाई किया एंड स्टार्टेड ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन रीचिंग टू द लोड इन द t सेकेंड, और t सेकेंड बाद वो इस एंड पे पहुंच रहा है हमारा वेव. सो t सेकेंड विद द सेम मैग्नीट्यूड, यानी हमारा किस तरह का लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सीज द लोड एंड इज ओपन सर्किट, क्योंकि लोड एंड हमारा ओपन सर्किट है तो वेव क्या होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, बैक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा एल वी, क्योंकि हम लोड एंड का क्वेश्चन क्या लिए, अल्फा एल. सो अल्फा एल इंटू वी विल बी द magnitude of the reflected wave because alpha L is equal to 1 for the open ended line, हमने पहले भी इसको डिफाइन किया है. एट टाइम t प्लस कुछ टाइम के बाद नाउ रीचेस सोर्स एंड इन द टाइम 2t, जितना टाइम इधर से इधर गया था लग रहा था उतना ही टाइम इधर से इधर भी आने में लगेगा. सो आफ्टर t टाइम यानी 2 टाइम अगेन द वोल्टेज, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम v मान रहे हैं, कोई लॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो वो v फिर हमारा इधर अपीयर होगा. So now so the reflected wave is reflected back once again with the magnitude of alpha sv, यानी इस एंड पे क्या होगा, जैसे ही इधर पहुंचेगा इस एंड से ये फिर इधर की तरफ ट्रेवल करेगा, और क्योंकि वो इसके लिए आने वाली वेव इंसिडेंट ये होगी जो इधर से रिफ्लेक्ट होके आई थी, और इधर से ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी. अब हमारे लिए ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो कोफिशिएंट क्या है, अल्फा एस. अल्फा एस इंटू वी से ये हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, and after reaching the source in time t plus at the this process is continuously infinite time के लिए होगा. मान लीजिए t 0 पे वोल्टेज वेव हमने अप्लाई किया, तो वोल्टेज विल बी ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर t टाइम में, फिर t से इधर आने में 2t टाइम लगेगा, पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, और यहाँ से इधर हमारा वेव सेम वोल्टेज, क्योंकि अल्फा लोड का जो अल्फा एल है वो 1 होता है ओपन सर्किट एंड के लिए. फिर यहाँ पर वोल्टेज जब आया, तो क्योंकि अब यहाँ पर हमारा अल्फा एस हमने कोफिशिएंट एज्यूम कर रखा था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो इस पे क्या होगा, अल्फा एस इंटू एस के टर्म में यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और फिर इसके फिर अल्फा एस से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा एस स्क्वायर बी. तो सिमिलरली इसी तरह t5 t6 t टाइम पे ये वोल्टेज हमारा चेंज होता जाएगा. तो अगर आप देखें ध्यान से, हमारा केवल सेंडिंग एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही अपना रोल प्ले कर रहा है, रिसीविंग एंड पे हमने 1 मान रखा है, तो इसी डायग्राम को हम लैटिस डायग्राम बोलेंगे फॉर ओपन सर्किट. सिमिलरली इफ वी प्लॉट द लैटिस डायग्राम फॉर द रिसीविंग एंड केस, तो रिसीविंग एंड में क्या होगा, वोल्टेज t0 पे अप्लाई होगा, इधर से इधर जाएगा. अब यहाँ पर बिकॉज इट इज टर्मिनेटेड थ्रू अ रेजिस्टेंस, so there are two phenomena at this junction. There will be a reflection as well as there is a refraction or the transmission, so both the coefficient will be involved here. So मान लेते हैं अल्फा एस इज द सेंडिंग इन रिफ्लेक्शन एंड अल्फा एल बी द लोड एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. So if we plot the lattice diagram, so v पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अल्फा एल होगा हमारा टी टाइम के बाद लोड एंड पे, so it will be multiplied by the alpha l here. Now again it will be multiplied by the alpha s into alpha l. alpha l ये है, alpha s से मल्टीप्लाई हुआ टी टाइम पे यहाँ पर आएगा. इसी तरह ये हमारा क्या होगा, इसके स्क्वायर के टर्म में ये आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वोल्टेज जो है वो चेंज होता जाएगा, और इस तरह इस सीक्वेंस से हमारा क्या होगा, वोल्टेज वेव ट्रेवल करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए. तो दैट इज नोन एज द लैटिस डायग्राम फॉर अ रिसीविंग इन कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस. तो यही हमारा लैटिस डायग्राम है, और एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कंस्ट्रक्ट Dirichlet lattice diagram when a pulse source of a magnitude V volts with the resistance of 150 ohm is applied across the
loss free line and surge impedance is given, and with the resistance of 200 ohm like figure, assume that the line is be in the 10 किलोमीटर लेंथ, इट इज गिवन लाइन 10 किलोमीटर लेंथ की है और जेड हमारा गिवन है 150 आर बी, जेड जीरो हमारा 400 आर है और हमारा रिसीविंग एंड पे जो रजिस्टर है वो 200 आर का लगा हुआ है। तो अल्फा एस इज इक्वल टू जेड एस माइनस जेड जीरो अपॉन जेड एस प्लस जेड जीरो सॉल्व है। अल्फा एल को भी हमने आर माइनस जेड जीरो अपॉन आर प्लस जेड जीरो से सॉल्व कर लिया। At the input of the line, impulse voltage is on line is Z0 upon ZS plus Z0 into V. Solve कर लिया 8/11 reflected voltage at this E. तो इस तरह से हमने फिर आगे निकाल लिया कि this minus 2 voltage backward pulse reach to the source P second and get reflection. Then reflection voltage at source is alpha S into this voltage multiply करके ये voltage मिला। This reflected voltage this will be reaches the load in again and reflected back in process continue as shown in figure. तो इसी तरह से लैटिस डायग्राम आपको प्लॉट करना है। Now this is the unit at a glance की इवैल्यूएशन ऑफ, अगर हम इस पूरे यूनिट को देखें यूनिट एट ए ग्लांस की बात करें सॉरी, तो यूनिट means there are it is a in a glance I have given all the formula in a selective manner. Suppose a lightning discharge or a sudden switching is on the power system suddenly implies the electrical energy in the transmission line which moves along the line at nearly the speed of the light and called as a traveling wave. Now types of transients क्या है, wave equation कैसे क्या है, incident wave का क्या formula है, every formula I have listed here. Reflected wave का formula क्या है, that is again listed here. Similarly evaluation of surge resistance, कैसे हम surge resistance को evaluate करते हैं, underground cable के लिए surge impedance की value कैसे calculate करते हैं. Similarly importance of surge impedance is given here. Now evaluation of velocity of wave propagation, अगर wave propagation for overhead and below, so all the formulas are given in these two slides and it will be definitely helpful for you. So now here our last unit, fifth unit of traveling wave is over, and next we have next 3 lectures. So that 3 lectures will be we have to discuss some important points, important questions related to your pre-university exam, or you can say for the semester exam, as well as I will conduct a quiz examination as per the institute guideline. So you all are requested to participate in a quiz examination for your internal assessment, as well as try to solve and submit the assignment which is given in the upcoming lecture. Thank you all.